Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today I'm going to solve this numerical. So basically, this numerical belongs to class 12, and this is taken from chapter 3, current electricity. Fine. And this is asked by Lakshman Dhoni. Okay. So this is Dhoni basically, but actually his full name is Dhoni, and he is my student from Chetna PU College at Vijaypura. So let us see what type of a difficult question this is. Is it difficult or easy? We'll see that. Or else average. Fine. So this question is appeared in Karnataka PU board final exam for class 12 in March 2015. So this is appeared question. Now, so he asked with this sequence 10 number. I don't know that from where he has taken. Now, two cells of EMF 2 volt and 4 volt. So basically they have given the data, my dear kids. E1 is equals to 2 volt and E2 is equals to 4 volt. Fine. And internal resistance R1 is equals to 1 ohm, R2 is equals to 2 ohm, my bachcho. ठीक है, respectively are connected in parallel. They are saying that cells, if cells are connected parallel, it means that internal resistance are also parallel, because internal resistance will be always taken inside the cell, my dear kids, so as to send the current in the same direction through an external resistance of 10 ohm. मतलब बच्चों एक चीज करना है, आप पहले तो एक सेल को लेना है डायग्राम में, ठीक है, तो उसका जो कनेक्शन है उसको रेजिस्टेंस के साथ कर लो और दूसरा सेल ले लो बच्चों. सो अगेन इट इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. फाइन. तो इसको E1 करके मान के चलते हैं और इसको E2 करके मान के चलते हैं. नाउ माय बच्चों, यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू यूज डिफरेंट कलर सो दैट बहुत इजी हो जाए चीजें. नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, माय बच्चों. सो व्हाट दे आर सेइंग, सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगा, बेसिकली सेम रहेगा. एंड द रेजिस्टेंस इज 10 ohm of what, external resistance. Now my bachcho, internal resistance can be taken, you can show here like this, that is R1, and here that is R2. So R1 और R2 ऑलरेडी दिया हुआ है. R1 1 ohm है और R2 2 ohm है. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I1 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I2. तो दोनों मिला के यहाँ पे आके क्या होता है, सो both will added together here and showing here, that is I. मतलब ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, that is I. तो बच्चों I क्या है, I is nothing but I is equals to I1 plus I2. ठीक है, इतना तो हमको पता चल गया. ठीक. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर माय बच्चों अगेन. सो सर व्हाट, रेड कलर नहीं करेंगे, अलग कलर यूज करते हैं, ब्लू कलर करते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट द जंक्शंस. ठीक है, कितने जंक्शंस हैं यहाँ पे, मतलब 6 हैं. तो यहाँ पे हम लोग नोड्स ले रहे हैं. सो दिस इज A, B, C, D, E और ये आपका F. ठीक है, तो यहाँ पे 2 लूप फॉर्म हो रहे हैं बच्चों. एक है आपका A, B, E, F, A. ठीक है, तो 2 लूप्स ऑफ फॉर्मिंग. लूप 1, ठीक है, A, B, E, F, A. ठीक. नाउ लूप 2, so B, C, D, E, B. B, C, D, E, B. Okay, 2 loops are here. So we will use what, my dear kids, we are going to use Kirchhoff's
क्या यूज करने वाले हैं? किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना है। द जनरल फॉर्मूला फॉर किरचॉफ्स लूप रूल विल बी, आई विल शो यू बच्चों। ठीक है, सो दैट विल बी यू नो व्हाट, वो क्या रहेगा जनरल फॉर्मूला? I is equals to E, capital E divided by into the bracket capital R plus small r. This is the general formula for what? Kirchhoff's loop rule. ठीक, तो इस जनरल फॉर्मूला को थोड़ा सा किरचॉफ लूप रूल के वे में ढंग से लिखते हैं। E is equals to I into the bracket capital R plus small r. तो जनरल फॉर्मूला जो लूप रूल का हम ये ले रहे हैं, वो कंसेप्ट क्या बताता है बच्चों? समेशन ऑफ पोटेंशियल थ्रू द लूप, क्लोज लूप विल बी 0। ठीक है, तो ये चीज हमको दिमाग में रखना है। मतलब जितना हम जा रहा है उतना ही हमको, मतलब द समेशन ऑफ द पोटेंशियल विल बी सेम थ्रू आउट द लूप, वो तो हमको पता होना चाहिए, दैट विल बी 0। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू write the general equation in terms of like this: E is equals to IR, capital I into capital R plus capital I into small r, means current inside this internal resistance. ये वाला करंट है, ये जनरली करंट इनसाइड कैपिटल R, ठीक है, और ये वाला करंट इनसाइड स्मॉल r, मींस करंट इनसाइड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट इनसाइड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमको क्या बनाना है? इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूप वन का फॉर्मूला बना लेते हैं। लूप वन, ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द एलोंगेटेड वन। ठीक है, बड़ा वाला नहीं लिखूंगा मैं। ठीक, सो ये क्या है आपका? लूप वन है। सो लूप वन इज ए बी ई एफ ए। ठीक, इतना है। नाउ you can modify this equation with the first loop. So first loop में E क्या है आपका? E1 है। तो E1 is equals to क्या लिख सकते हो बच्चों आप? Is equals to current passing through the capital R, means external resistance क्या रहेगा? So that is I into capital R plus now the current through the small r1, that is I1। ठीक है, तो I1 into internal resistance, this can be written like this। so इसी इक्वेशन को हम क्या बनाते हैं? E1 का वैल्यू लिख लेते हैं। so E1 वैल्यू इज 2 and current we don't know current through the external resistance, लेकिन external resistance कितना है? 10 है। so 10 I लिख देते हैं बच्चों, plus I1 we don't know but R1 we know that R1 is 1 I1। okay, तो इतना तो मिल गया। so take this as equation number 1। fine, so equation 1 पता चल गया बच्चों। now what we are going to do, you know, एक चीज कर लेते हैं हम लोग, we can make the column here। ठीक, so for loop 2 में बच्चों इक्वेशन 1 तो फाइंड कर लिया, लूप 2 क्या है हमारा? so that is बी सी डी ई बी। क्या यही है? देख लो आप, फाइन, यही करेक्ट है। ठीक, so now for the loop 2 it is here बी सी डी ई बी। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों? for E we can write E2। देखो यहाँ पे E के लिए हम क्या लिख सकते हैं? E2 is equals to now for the I current passing through the external resistance, वो क्या रहेगा? IR रहेगा। but the current passing through the small r2 is I2, so it can be written as I2 into small r2। but we know that for I2 this is equals to I minus I1, means I minus I1 is equals to what? I2। so you can substitute here and तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं E2 is equals to वैल्यू कितना है हमारा? E2 is equals to 4। फाइन, is equals to ये करंट हमें कितना है पता नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10I है, प्लस R2 को क्या करता है? R2 कैन बी टेकन एज 2। ओके, नाउ I2 कैन बी रिटन एज I माइनस I1। ठीक है, तो I2 को हमने क्या लिख दिया? I माइनस I1। तो इसी को हम क्या करते हैं? 10I
प्लस 2i कितना हुआ 12i, ठीक है। सो 12i, सो थोड़ा सा रब करके अच्छी तरह से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4 इज इक्वल्स टू 12i प्लस, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका माइनस, प्लस रहेगा माइनस माइनस, सो 2i प्लस 10i कितना हुआ 12i हुआ, एंड 2 इंटू माइनस i1 दैट कैन बी रिटन एज माइनस 2i1, ठीक है। तो दिस इक्वेशन कैन बी टेकन एज इक्वेशन 2, फाइन। लेकिन अगर हमको i2 फाइंड करना है तो इसी को लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, चलो कोई नहीं, इस चीज को हम याद रख लेते हैं बस इक्वेशन, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन 2, नो इश्यूज, इतना तो आ गया। अभी क्या करते हैं बच्चों, एक चीज को करना है हमें, व्हाट कैन बी डन, यू नो, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, सो वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 2 is equals to 10i plus 1i1, means on solving 1 and 2, on solving 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, तो 2 का मतलब 2 is equals to 10i plus 1i1 लिख लिया as equation 1, and for equation 2 we can write 4 is equals to क्या है, 4 is equals to 12i minus 2i1, ठीक है। सो 1 and 2 लिख लिया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2। सो इन टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद 1 द बिलो इक्वेशन टू द इक्वेशन 2, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडिफाइड इक्वेशन क्या मिलेगा, 4 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 2 10 जा 20i and 2 1 जा plus 2i1, okay। now 1 4 जा 4, so 1 12 जा 12i, 1 2 जा minus 2i1। सो बच्चों एक चीज हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, मतलब इन दोनों को ऐड किया 8 मिला, ठीक है, इज इक्वल्स टू 20 प्लस 12 कितना आया 32i, ये प्लस 2 माइनस 2 प्लस, ये क्या होगा, मतलब दोनों प्लस इंटू माइनस क्या करना है, अगर दोनों को ये करें तो हमको क्या करना है, बस प्लस ही करना है दोनों के बीच में। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट कैन बी टेकन एज प्लस 0। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, 8/32 is equals to I, means this can be written as, ये क्या implicate कर रहा है, I is equals to 8 1 जा 8 4 जा 1/4, means it can be written as 0.25 ampere। so current is equals to 0.25 ampere आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये तो पूरा अच्छी तरह से हमने समझ लिया, लेकिन अभी समझो हमको क्या फाइंड करना है, वी आर फाइंडिंग आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V एंड E, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 10 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके लिए हम क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस को खाली कर लेना है, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रॉपरली। ये क्वेश्चन तो इजी है बच्चों अगर हम समझ के करें, वरना इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। समझ में पहले समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सो बच्चों अभी करना क्या है, वी नो दैट I is equals to 0.25 एम्पियर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, तो क्या मिल रहा है, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सो करंट अक्रॉस 10 ओम कितना आया, दैट इज 0.25, तो रेजिस्टेंस एट 10 ओम
that can be written as 10. So 10 into 0.25 कितना आ रहा है? That can be written as 2.5 वोल्ट. So उन्होंने पूछा क्या था? वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम, 2.5 वोल्ट. ठीक है, तो उन्होंने यही चीज पूछा था बच्चों. अभी और क्या पूछ रहे हैं? इफ इवन दे आस्क टू फाइंड आउट I1 वैल्यू, तो I1 वैल्यू के लिए क्या? इक्वेशन 1 ले ले, तो आपको I का वैल्यू तो आपके पास है. सो व्हेन यू राइट इक्वेशन 1, 2 इज इक्वल्स टू, तो अलग कलर से चूज करते हैं. चलो बच्चों, अलग अलग कलर से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें I1 फाइंड कर रहे हैं वो चीज पता चले बच्चों को. सो 2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू I कितना है? 0.25. ठीक है, इतना लिख दिया. फिर प्लस I1 मीन्स ये कितना आएगा? 2.5 आ रहा है और ये 2 है. सो प्लस I1. देयरफॉर I1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? I1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 क्योंकि 2 में से 2.5 को निकाला तो माइनस कितना आएगा? 0.5 एम्पियर आएगा. ठीक है, सो I1 इज इक्वल्स टू कितना आया? माइनस 0.5 एम्पियर आया. फाइन. तो अभी इक्वेशन 2 भी देख लेते हैं. सो माय बच्चों, वी आर फाइंडिंग आउट हियर I2 आल्सो, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू फाइंड आउट दीज थिंग्स. ओके, हमें क्या करना है अभी? नेक्स्ट I2 फाइंड करना है. क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, लेकिन हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं. फाइन. तो यहाँ पे देख लो बच्चों, ये एक इक्वेशन है आपके पास. विच वन? E2. E2 इज इक्वल्स टू IR प्लस I2 R2. फाइन. सो बच्चों, विल डू वन थिंग. E2 का वैल्यू कितना है? वी नो द वैल्यू ऑफ E2, दैट इज 4. ठीक. अभी करंट कितना है? करंट इज दैट इज 0.25 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 10 प्लस I2 एज इट इज लिख दिया, और R2 कितना है? 2 है. ठीक है, सो यू कैन सी हियर 4 इज इक्वल्स टू 0.25 into 10 कितना आया? 2.5 plus I2 as it is into 2. Now if you send 2.5 on the LHS side, so 4 minus 2.5 I2 divided by 2. ठीक है, तो कितना आया देखो? 1.5 divided by 2 is equals to I2. Now my बच्चों, I will clean up this space क्योंकि यहाँ पे हमको I2 फाइंड करना है. ठीक है, सो माय बच्चों, I2 as it is 1.5 divided by 2, क्योंकि 2 को 1 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, so it can be taken as 0. So 1 if it is included with 5, 2 1 जा 2 7 जा. ठीक है, फिर 1 बचा, उसके साथ 0 लेने के बाद 2 5 जा, मतलब I2 कितना आ रहा है हमारा? I2 is coming 0.75 एम्पियर. नाउ टोटल करंट कितना है? टोटल करंट इज 0.25 एम्पियर, हमने जो कैलकुलेट किया था. ठीक है, बट नाउ वी हैव I इज इक्वल्स टू I1 का वैल्यू कितना मिला है हमको? माइनस, बिकॉज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है. ठीक है, तो एक चीज हमें करना है, I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करना है कि I का जो हमने पहले वैल्यू फाइंड किया था उसके साथ मैच करेगा या नहीं करेगा. फाइन. सो I1 इज हाउ मच? I1 is minus 0.5 plus where I2 is 0.75. okay, so this is कितना होगा? 0.25 एम्पियर. ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया. सो दिस इज नथिंग बट वेरिफिकेशन कि जो सॉल्व किया है हमने वो सही है या नहीं. ठीक है, यहाँ पे देख लो, you can see simple. So after seeing the solution of this question in this video my dear kids, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोई डाउट इसमें आपको
आ रहा है ये सॉल्यूशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. इफ यू हैव अनदर डाउट्स regarding different questions, you can ask me anytime. So basically, I have passion to solve the numericals, NEET, JEE, CET, NDA, UPSC. तो किसी टाइप के भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हो आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है. सो आई विल राइट माई email ID here, so you can send it at my email ID @gmail.com. and even though I have WhatsApp number, my dear kids, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाऊंगा ताकि आप लोग लिख सको उस WhatsApp नंबर को. सो दिस इज माई WhatsApp नंबर my बच्चों, 8105500655. सो दिस इज माई WhatsApp नंबर, ठीक है. तो आप इस पे कोई भी क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझसे भेज के उसका वीडियो आप इस तरह से बनवा सकते हो. ओके, सो एवरीथिंग विल बी फ्री हियर एट माय चैनल. सो मेरा चैनल का नाम है फिजिक्स इंडियन प्रोफेसर. तो कुछ लोगों का मत होता है सर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर आप करने के लिए कहते हो, क्या ज़रूरी है सर? तो बच्चों मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ इस पर, अगर मेरा वीडियो आपको सही में अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो वो जो बेल वाली घंटी है ना, उसको आप दबाना मत भूलिएगा. अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं कहता हूँ आपको, आपके जो मन में आए वो कर सकते हैं, ठीक है. सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय माय डियर किड्स, जय हिंद.